word. पर उससे भी पहले हम वचनों में जाएंगे इस समय. Hallelujah. So let's turn our Bibles to Acts chapter 13 and verse 6 to 12. और आइए हम प्रेरितों के काम इसका 13 अध्याय 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे. Acts chapter 13 verse 6 to 12. Praise God. Afterwards, they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos, where they met Jewish sorcerer, a false prophet named Bar Jesus. He attached himself to the governor Sergius Paulus, who was an intelligent man. The governor invited Barnabas and Saul to visit him, for he wanted to hear the word of God. The Elymas, the sorcerer, as his name means in Greek, interfered and urged the governor to pay no attention to what Barnabas and Saul said. He was trying to keep the governor from believing Saul, also known as Paul, was filled with the Holy Spirit, and he looked the sorcerers in the eye. Then he said, "You son of the devil, full of every sort of deceit and fraud, an enemy of all that is good, will you never stop the true ways of the Lord? Watch now, for the Lord has laid his hand of punishment upon you, and you will be struck blind. You will not see the sunlight for some time." Instantly, mist and the darkness came over the man's eye, and he began groping ground and begging for someone to take his hand and lead him. When the governor saw what had happened, he became a believer, for he was astonished at the teaching about the Lord. Yes. 6 to 12. और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे. वह उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोन को और झूठा भविष्यवक्ता मिला. वह सिरिगयुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था. उससे बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोनहिन ने कहा, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है कि उन्हों का सामान्य करने की सूबेदार के विश्वास करने से रोकना चाहा. तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी और टकटिकर लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करने न छोड़ेगा? तब देखो, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा. तब तुरंत धुंधलाई और अंधकार उस पर छा गया और वह इधर उधर टोलटलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले. तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया. Hallelujah. Now, people of God, listen to me carefully. और परमेश्वर के लोगों मुझे ध्यान से सुनिए. I already started this topic on Wednesday. ये टॉपिक मैंने पहले से बुधवार को शुरू किया है. How many of you have watched the Wednesday service? कितनों ने बुधवार की सभा को देखा है? Okay, few of them. So I'm just going to go a little fast forward right now. तो मैं इस समय बहुत थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाने वाला हूँ. Because and then I'm just going to give summary as well for what I preached. और मैं इस चीज का समरी भी दूंगा जो मैंने प्रचार किया. So today we are going to see on the topic of how to deal with the enemies. और आज हम देखेंगे कि हम हमारे शत्रुओं का कैसे सामना करें. People of God, this Paul being filled with the Holy Spirit. और ये पौलुस जो है पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भर गया. He was invited to meet the governor of that place. और उसको बुलाया गया कि वहां पे उस देश के सूबेदार से वो मिले. And Paul and Silas, they both were working hand in hand in the ministry. और यहाँ पे पौलुस और सिलास जो है एक साथ जो है वहाँ पे सेवकाई कर रहे थे. And when the governor wanted to have a prayer and they wanted to Paul and Silas had a intention that we should bless this governor, we should pray for this governor. और यहाँ पे उन्होंने ऐसे योजना बनाई कि हम इस देश के सूबेदार को जो है आशीषित करेंगे, उसको सुसमाचार सुनाएंगे. But even before governor consulting Paul,
he also had one more consultant. He was a sorcerer over there. His name was Bar Jesus. और वहाँ पे पौलुस और सिलास से मिलने से पहले वो सूबेदार ने जो है वहाँ पे अपने योजना जो बनाने वाला उससे मिला, वहाँ पे वो जादू टोना करने वाला था। His name was what? Bar Jesus. उसका नाम बार जीसस Now था। don't get confused. This is not Jesus. This is Bar Jesus. और इसके बारे में आप जो है आश्चर्य मत गलत मत सोचिए, इसका नाम बार यीशु है। Hallelujah. Now here we see that Paul was furious over this man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल जो है बहुत गुस्से में हो गया इस Because the मनुष्य पे। moment this sorcerer saw that Paul and Silas, these two men of God, are coming to meet the governor, और जैसे उसने देखा उस जादू टोना करने वाले कि पॉल और सिलास जो है सूबेदार से मिलने आ रहे हैं, immediately, Bar Jesus came, like, come here, Parth, stand here. So for example, he is governor. उदाहरण के तौर पे कि मैं गवर्नर हूँ, Paul and Silas are coming. पॉल और सिलास आ रहे Now हैं। you resist me as I'm going to meet him. Okay, you stop me as I'm going to. I'm just going to see. Praise the Lord. Stop me. Come on, use all your might. So this sorcerer तो ये जादू टोना करने वाला was restless. ये जो है पूरा आश्चर्य, Not he, and I'm talking about in the Bible. वो बाइबल के बारे में बता रहा हूँ। Okay, he was restless that this true men of God have come to meet the governor now. और ये सोचने लगा कि सच्चे परमेश्वर के दास जो है गवर्नर से मिलने आए हैं। He became an enemy of gospel over there. और यहाँ पे वो सुसमाचार का जो है दुश्मन बन गया। And Paul being Paul. और पॉल पौलुस था। नहीं, Paul being Paul, मतलब Paul जैसे पौलुस है। पॉल जो पॉल है नहीं रे भाई। पॉल जो उसका स्वभाव है उस टाइम पे, ऑफ कोर्स ही इज अ मैन ऑफ गॉड नाउ, सच में वो परमेश्वर का दास बिकॉज है। शाउल वाज टर्न इनटू पॉल. क्योंकि शाऊल जो है पॉल बन गया। बट समटाइम्स पर कभी कभी what I'm going to teach you right now, thank you so much Paul, what I'm going to teach you right now, पर मैं आपको ये प्रचार करना चाहता हूँ कि Paul was a follower of Jesus, is a follower of Jesus. यहाँ पे ये पौलुस जो है यीशु मसीह का वहाँ पे चेला था। Jesus opened the blind eyes. और यीशु मसीह ने अंधों की आंखों को खोला। Jesus healed many sick people. और यीशु मसीह ने बहुत से रोगियों को चंगा किया। And the same man of God who is following Jesus, और वही प्रभु के दास जो यीशु मसीह को वहाँ पे अपना गुरु मानते हैं, now he is blinding the eyes of people. और ये व्यक्ति जो है लोगों को अंधा कर रहा है। What a irony over here. यहाँ पे कितनी बड़ी आयरनी है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, it is very important for you to understand this. परमेश्वर के लोगों, ये बहुत जरूरी बात है हमें समझना। Whenever you want to grow in life, जब कभी भी आपको जीवन में आगे बढ़ना है, if you really want to grow in life, अगर आपको सच में जीवन में आगे बढ़ना you है, will always come across enemies in your life. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप आपके जीवन में हर बार शत्रुओं You से सामना cannot करेंगे। have growth in your life if you don't have enemies in your और मैं life. आपसे कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं तो आप ग्रोथ को नहीं देख पा Are रहे। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now don't go and find out the enemies. अभी ये मत करो कि ढूंढ अपने शत्रुओं को ढूंढते बैठो। है मेरे को ग्रो होना है, कोई दुश्मन नहीं है, चलो जाके दुश्मन बनाता हूँ. I'm telling you people of God, there are many people in my office who are against me sometimes. और मैं आपसे कहता हूँ मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे विरुद्ध हैं, Because there are certain people who are under my favor. क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो है मेरे भलाई में हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? If you don't want to grow, अगर आप बढ़ना नहीं चाहते, I told you on Wednesday also. मैंने आपको बुधवार में भी ये बताया, If you don't want to leave an inheritance for your children, अगर आप आपके बच्चों के लिए जो है वहाँ पे गलत चीजें नहीं छोड़ना चाहते, if you don't want to keep an inheritance, विरासत अगर आपके बच्चों को आप नहीं रखना चाहते, अगर आप बढ़ना नहीं चाहते, तो आप कृपया करके आइसक्रीम बेचो. You know what once Steve Jobs said? How many of you know who is Steve Jobs? कितनों को पता है स्टीव जॉब्स कौन है? Apple phone. Steve Jobs. No, I'm not promoting Apple, okay? What I'm trying to tell you, he said once, if you really want to be a leader, उसने ऐसे कहा था कि अगर तुम सच में एक अगवाह बनना चाहते you हो cannot please everyone. तो आप सभी को खुश नहीं रख सकते। If you want to please everyone, please sell ice creams. अगर आपको अगवा बनना, अगर आपको सिर्फ लोगों को खुश करना, लीडर बनना है तो प्लीज आपको लीडर नहीं बनना है तो आप आइसक्रीम बेचो. मतलब इन शॉर्ट sarcastically said, मीठा मीठा बात करते रहो. हाउस ऑफ ग्रेस you will not find anything sugar coated. यहाँ पे हाउस ऑफ ग्रेस में आपको कोई भी चीज जो है मीठे में से लपटे हुए नहीं देखे। And if anyone is sugar coated, I easily discern it. और अगर कोई ऐसे ज्यादा मीठा बात करता है तो मैं That doesn't mean that you should not talk sweet. I'm saying sugar coated. There is a difference between sugar coated and actually being sweet. और यहाँ पे
फर्क होता है एक शुगर कोटेड में और एक अच्छा बनने में, अच्छा बात करने में। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now, pastor said, don't be sugar coated, don't be rude to everyone after the church. और कलीसिया के बाद जो है सबसे मतलब क्रोध से बात मत Sometimes I have to give lot of disclaimer while preaching. कभी कभी मुझे बहुत सी चेतावनियां देनी पड़ती है प्रचार करने से पहले। Are you क्या understanding? समझ रहे हैं? Because there was one, church, क्योंकि एक ऐसी कलीसिया थी, and that it said, don't be sugar coated. उन्होंने ऐसे कहा कि शुगर कोटेड After the church, no one greeted, praise the Lord. कलीसिया के बाद किसी ने एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, असली अवतार में आ गए फिर वो लोग। So please, there is a thin line being sweet and being sugar coated. तो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ऐसी छोटी सी बात है, फर्क है शुगर कोटेड और अच्छी बात करने में। People of God, I want to tell you, और परमेश्वर के लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Paul and Barnabas was on a missionary over here, और यहाँ पे पौल और बरनबास है जो है यहाँ पे एक योजना से सेवकाई कर रहे थे, and they encountered a sorcerer over here. और यहाँ पे एक जादू टोना करने वाले से वो मुलाकात करते I हैं। told you how the sorcery is done. और मैंने आपको बताया था कि ये जादू टोना कैसे कार्य में आता है, Sorcery is done by 3 ways. और ये जो जादू टोना है 3 चीजों से कार्य में आता है। You don't have to do it. I'm giving you a knowledge about it. आपको करना नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ। First thing, the sorcery is done by speaking. सबसे पहली चीज के बोलने से जादू टोना होता है, They speak certain mantras. और वो कुछ ऐसे मंत्र आपके बारे में बोलते हैं, They speak certain things about, certain situations. और कुछ परिस्थितियों के बारे में आपके विरुद्ध वो बात करते हैं। Second, the sorcery is done through writing. और दूसरी बात कि वो लिखने से जादू टोना करते हैं। They write certain things, they write certain situations, they write certain incident that this is what it should happen. और वो ऐसी चीजों को लिखते हैं कि ये सब चीजें इनके जीवन में होनी चाहिए। Are you understanding? People of God, I'm telling you, I've researched on this and I know that how these things are done. और मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और मुझे पता है कि ये सब चीजें कैसे And होती the हैं। third is by invoking. Invoking means by inviting that dirty spirit over there. और यहाँ पे जो है तीसरी बात की वो दुष्ट आत्मा को वहां पे बुलाना। Now, sometimes they use certain instruments to control the people. और कुछ कुछ वक्त समय पे जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ औजारों का इस्तेमाल How करते many of you हैं। have seen that small doll? कितनों को पता है वो छोटी सी गुड़िया? Yeah, the small doll, they put some pins on it. Sometimes, they tie certain things over those dolls or over certain things. और वो जो है उस गुड़िया को जो है टाचनी मारते हैं या फिर कुछ चीजों से उसे बांधते हैं। I have seen certain baby statues also. मैंने कुछ बच्चों के ऐसे गुड़ियों को भी देखा है। They put, for example, they cut their leg or they do something on their leg, and so that some people have start having problem on their legs. और वो जो है उस जो गुड़िया की जो पैर काट देते या फिर हाथ काट देते, तब उनको बच्चों को जो है पैरों में तकलीफ होने लग जाती People है। of God, I'm telling you, for example, I also gave an example on Wednesday that when you go for a palm reading, not you, but if ever you would have gone. How many of you have gone? कितने लोग यहाँ पे गए हैं Palm reading. हाथ पढ़ने के लिए? Now, palm reading, when you go, they say, आपका शादी का योग है? नहीं है. I'm just saying like this. अगले महीने बस से बच के रहना. अगले महीने ट्रेन से बच के रहना. Are you understanding? कितने लोग समझ पा रहे हैं? And then you keep these thoughts in your mind. और ये सब चीजों का अपने विचारों में रखते हो, And actually, sometimes it happens like that. और कभी कभी भी हो भी जाता है। I'll tell you how it happens. And you feel that these guys are prophetic or what? और आपको ये लगता है कि ये सब होने के बाद कि ये लोग जो है भविष्यवक्ता है These क्या? guys are not prophetic. ये लोग भविष्यवक्ता नहीं है। These guys are operating under the unction of the evil spirit. ये लोग जो है दुष्ट आत्मा के प्रभाव में बात So करते what happens when they speak? हैं, और जब ये बात करते हैं It happens in the evil spirit are conjured to take action on that behalf. तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा जो है प्रभावी हो जाती है, यहाँ पे वो कार्य में आती है उस सब चीजों को करने के And लिए। then you say, oh, जसं तो बोललेलं तसं झालं. No. ते दुष्टात्माने केलेलं आहे. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Many people are under deception and the devil is the father of lies. और यहाँ पे बहुत से लोग जो है झूठ में, और यहाँ पे झूठ का पिता शैतान है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? How many of you know the new app called Astro Talk? और कितनों को पता है एस्ट्रो टॉक करके एक नया ऐप है? इतना होली मत बनो, सुना है कि नहीं? Yes. हो देखते चर्च में कुछ नहीं हो रहा, चलो एक फ्री टेक्स्ट डाल के देखते हैं वहां पे. I'm telling you, there are Christians who do like this. मैं आपसे कहता हूँ बहुत से ऐसे मसीह लोग जो है ऐसे करते हैं, And I don't feel angry, I feel sorry for them.
और मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं लेकिन बहुत दुख खेदित ऐसे महसूस करता I हूँ feel sorry for them that they have something which they don't know. और मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ कि उनके पास कुछ तो ऐसे महान चीज है लेकिन वो नहीं जानते I have some people closely, our family friend, and sometimes I feel ashamed to call them relatives sometimes. They go and seek this guidance, some things like और this. यहाँ पे ऐसे बहुत से जो है मेरे रिश्तेदारों में या फिर मेरे फैमिली फ्रेंड्स में जो ऐसी चीज़ों को करते हैं और मैं उनको बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ उनको ऐसे जाने पहचाने करके बुलाने के लिए In this scripture, और इस वचनों में people of God, if this 2 rupees palm readers, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये 2 रुपए के जो हाथ पढ़ने वाले हैं I spoke very sophisticatedly. This 2 rupees palm readers can predict like this by the conjuring of the evil spirit. और यहाँ पे जो है ये 2 रुपए के जो हाथ पढ़ने वाले जो है ये सिर्फ अनुमान लगाते हैं आपके भविष्य के ऊपर उस दुष्ट आत्मा के द्वारा। How much more when you have a higher degree Holy Spirit with you, when you speak, and those will not mention what government and which country. मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या फिर कौन से कंट्री से ये बताना नहीं आ There रहा, are people at the high powers. लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो ऊंचे अधिकारी में हैं। There are people in the world who are at the top position. पर जगत में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाई पोजीशन पे हैं। They take consultation of such people. वो ऐसे लोगों के जो है वहाँ पे विचारों को I लेते can हैं prove it to you. और मैं आपको बताना चाहता Why हूँ, do prove they कर do? सकता हूँ ये क्यों करते To हैं, remain at that position. ताकि वो उस स्तर पे बने रह सके। You know, there are people everywhere, even in some of our countries. I know they have spoken that we take such consultations. Are you understanding what I'm आप trying to समझ रहे say? हैं? People of God, but there is a time which is coming पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक समय ऐसे आने वाला when है they will consult true prophet of God. पर वहाँ पे जो लोग हैं ऐसे लोग जो है परमेश्वर के भविष्यवक्ता के Now, द्वारा people of उपचार God, लेंगे। when this enemy came, और जब ये शत्रु वहाँ पे आया Paul did not say, "I'm praying for you, brother. Don't worry." पौलुस ने ये नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ, चिंता मत करो। Paul did not say, "Hey, Bar Jesus, God loves you." उसने ये नहीं कहा कि बार जीसस में परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता अरे है। बाळा तू का मत येतो साइडला हो, I love you. I am going for a gospel. Don't be my enemy, please. He did not say like that. उसने ऐसे नहीं कहा कि मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, वहां से दूर हो जाओ। He took him in remand उसने वहां पे उसे धमकाया। and he said, "You Bar Jesus, उसने उसे कहा कि तू ये बार यीशु, you are becoming an enemy of the gospel." तू परमेश्वर के सुसमाचार का दुश्मन बन रहा And है he said, "You are a child of Satan." और तू शैतान की संतान है। People of God, now what does it mean? और इसका अर्थ क्या है? All enemies are not of the same level. हर एक दुश्मन जो है एक स्तर पे नहीं होते, एक आयाम के नहीं होते। That means this sorcerer was becoming an enemy of righteousness. और यहाँ पे दिखाता है कि ये जो जादू टोना करने वाला था ये परमेश्वर के वचनों का दुश्मन बन रहा है। Paul saw straight in his eyes और पौलुस ने उसकी आंखों में सीधी रीति से and he देखा said that be blind. और उसने कहा कि अंधे हो जाओ। Look at the authority. उस अधिकार को देखे। He did not pray for him. उसने उसके लिए प्रार्थना नहीं He की। did not say God loves you. उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता He है। said be blind. उसने कहा कि तुम अंधे हो जाओ। Now people of God, और परमेश्वर के लोगों, governor saw all this scene. गवर्नर ने ये सब चीजें देख ली। Bible says na he saw all these things. सूबेदार ने सब चीजों को देखा And after seeing this thing, और ये सब देखने के बाद he said now I will believe in Jesus. उसने कहा कि मैं अभी यीशु के ऊपर विश्वास He करूंगा। did not. The Bible doesn't say that he heard the gospel. He heard the sermon which Paul gave. No. He saw what happened to the enemy, and the governor believed in Jesus. और यहाँ पे उसने देखा कि उस दुश्मन का क्या हो गया है और फिर उस सूबेदार ने विश्वास I किया। want to tell you one thing. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ Your एक चीज़ को। responsibility is not to make your enemy believe Jesus sometimes. आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप आपके दुश्मनों को जो है यीशु के ऊपर विश्वास करवाओ। Sometimes you have to deal with them. आपको कभी कभी उनसे मुलाकात Sometimes वहाँ पे उनको सामना की भी जगह करना है। दिखाना जरूरी है. Now I'm not talking about the physical enemy. और यहाँ पे मैं कोई शारीरिक शत्रु के बारे में बात I नहीं am कर रहा। not talking about the neighbor is doing natak. That's why you will go and do something after the church. और मैं ये नहीं कह रहा, I'm not talking about that. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पड़ोसी आपके जो है कुछ तो कर रहा है, आपके बारे में ठीक से बात नहीं कर रहा है। Fast forward, I want to tell you 6 ways to deal with enemies. और 6 तरीके हैं जिसके द्वारा आप दुश्मन का सामना कर सकते You हैं। might be thinking in your mind, Pastor, Jesus said, love your enemies. और यहाँ पे आपने सोचा होगा कि मतलब यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मनों से प्रेम रखो। And what this pastor is saying that you deal with the enemy, कान के नीचे बजाओ और अंधा करो. Hold on, I'm coming to that. Matthew chapter 5 and verse 44.
मत्ती इसका 5वां अध्याय 44 वचन। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Yes, hallelujah. Now, people of God, as I said, और जैसे मैंने आपसे कहा था, all enemies are not of same level. जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर एक शत्रु एक आयाम के नहीं होते, एक स्तर के नहीं होते। Every devil has a different level. हर एक शैतान का अलग अलग आयाम होता है। See, one more rhyming word. Are you understanding, people of God? All enemies are not on the same level. और कोई भी शत्रु एक आयाम का नहीं होता। So there are some enemies. और कुछ ऐसे शत्रु होते For हैं, them you have to love them, you have to bless them. एक उनको जो है प्रेम करना जरूरी है, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। People of God, there are certain enemies who you just have to ठीक है, चल, it's okay. Let us, I'll still pray for that person. और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनके लिए आप ये कहते हो कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। There are certain enemies you have to feed them as well. और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनको आपको खिलाना भी पड़ता है। Romans chapter 12 and verse 20. रोमियो उसका 12 अध्याय और 20वां वचन। Yes, Romans 12 and 20. Yes. परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। Yes, wait. यदि तेरा वैरी अगर भूखा हो तो उसे खाना खिला और प्यासा हो तो पानी पिला। पानी पिला. That means what Bible says, love your enemy. And if your enemy is thirsty or hungry, you also feed that enemy. और यहाँ पे बाइबल ये कहती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, या फिर वो भूखा या प्यासा है तो उसे खिलाओ। So people of God, when Jesus said, love your enemy, और जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम he did रखो, not mention which type of enemy, तो उसने यहाँ पे बताया नहीं कि किस प्रकार के वहाँ पे शत्रु which से प्रेम level रखो, of enemy. किस प्रकार के शत्रु से। Otherwise, we wouldn't had this different type of verses. I'm going to teach you from the verse right now. पर यहाँ पे मैं वचनों के द्वारा बताता हूँ। यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो वहाँ पे वो वचन नहीं होते। So there are certain enemies you have to pray for them, love them, feed them. और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनके लिए आपको प्रेम करना है, प्रार्थना करना है, उनको खिलाना है। And there is another type of enemy. और वहाँ पे एक और ऐसे शत्रु होते हैं प्रकार के। Matthew chapter 5 and verse 25. मत्ती इसका 5वां अध्याय 25वां वचन। There are one more type of enemy. और There एक is और one more प्रकार- type of enemy. और एक और प्रकार के ऐसे शत्रु होते हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, जिनके लिए आपको खिलाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है बाबा, मैटर आगे जाने से पहले अपन आपस में बात कर लेते हैं. यू हैव टू कम इनटू एन एग्रीमेंट. आपको एक सहमति में आना है। कैन यू रीड दिस? हाँ. जब तक तू अपने मूर्ति के साथ मार्गी में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले. ऐसा न हो कि मूर्ति तुझे हकीम और सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और बंदी गृह में डाला दिया। Yes, agree with your adversary. In other translations, it says agree with your enemy. और दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसे कहा गया कि तुम अपने शत्रु के साथ मेल मिलाप कर लो। It's like, for example, he is my enemy. कि ये मेरा शत्रु है, He is about to take me to the court. वो मुझे कोर्ट या अदालत में लेके जाने या वाला है। हमारा मामला आगे एस्केलेट होने वाला है. इससे पहले we will come. Bible, see how practical Bible is giving us the knowledge. और यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में कैसे परमेश्वर का वचन हमें नॉलेज दे And रहा he's, Bible, Jesus is saying that even before the matter is escalated, first you meet. है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो पे मुद्दा आगे बढ़ने से पहले तुम एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो। Brother, it's okay. Whatever happened, I mean, let's sort it out between us. और जो भी हुआ भाई, हम जो ऐसे अपने बीच में ही सॉर्ट आउट You कर know, देते हैं। let this not go ahead. इसे हम आगे नहीं बढ़ाते, Let this not become tamasha. इसे हम तमाशा नहीं खड़ा Let करते। this just in other translation, Mumbai language, what it says, Mandavli. मुंबई की भाषांतर में इसे मांडोली कहते हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People who are watching outside Mumbai, please ignore this. So the word of God is saying, आगे बढ़ने से पहले तुम agreement में आ जाओ. So there is one type of enemy. This enemy you do not have to love, you do not have to pray, you do not have to fast, you do not have to feed. तू तुझ्या रस्त्याला, मी माझ्या रस्त्याला. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? I'm giving you this wisdom from word. और ये मैं आपको बुद्धि इस वचनों के द्वारा दे रहा हूँ। What do you think? How am I talking? I have encountered lot of enemies. और आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत से शत्रुओं को देखा है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे People हैं? of God, agreement. मैं आपसे कहता हूँ मेल मिलाप। And then comes the last.
और फिर आखिरी बात 2 Timothy 4:14. दूसरे तिमोथियुस इसका 4:40. हाँ, 4:14. There is a time when you have to love them. और एक समय आता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रेम करें. There is a time you have to feed them. एक समय आता है कि हम उनके लिए जो है उनको खिलाएं. There is a time where you have to come into an agreement also. और एक समय आता है कि हम उनके साथ मेल And मिलाप then कर comes a लें. time where you have to take them in remand. और एक समय आता है कि हम उनके धमकाएं, उनको वहां पे श्रापित करें. Yeah, 4:14. सिकंदर ठहरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसके कामों को अनुसार बल देगा. Hallelujah. Now, here we see. Can you read the verse? Take it to 13. Yes. जो बागा में, bring the clock that I left with the Carpus at Thros when you come, and the books, especially, what is it? 14. Okay, 4:14. Okay, especially the parchments. And next, Alexander the coppersmith did me much harm. Who is talking? Paul is talking. Alexander the coppersmith, that means a businessman named Alexander, did harm to Paul. और यहाँ पे दिखाता है कि जो सिकंदर करके जो वहाँ पे बिजनेसमैन था, उसने पौलुस के साथ बहुत सी चीजें गलत की Now है. Paul was doing a ministry over there, और यहाँ पे पौलुस यहाँ पे सेवकाई कर रहा and था. he had a hurt over here. और उसने ये बात सुनी. Hurt. और यहाँ पे He उसे faced a hurt over here. और यहाँ पे उसे दुख हुआ इस बात का. And something this Alexander did to him. और यहाँ पे इस सिकंदर ने कुछ उसके साथ किया था. And here Paul did not say, Lord, I'll bless him, I love him. उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं उससे प्रेम रखता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ. A businessman, did something bad to Paul. और यहाँ पे बिजनेसमैन ने कुछ तो यहाँ पे पौलुस के साथ गलत किया. And he said, may the Lord deal with you now. और उसने ये कहा कि परमेश्वर तुम्हारा यहाँ पे बदला दे. May the Lord deal with you now. और परमेश्वर तुम्हारा यहाँ पे बदला And दे. you know, my people of God, when the Lord deals, और आपको पता है कि जब परमेश्वर वहाँ पे बदला लेता है तो कोई भी बचाने नहीं आ सकता. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? तो वहां पे कटप्पा भी बचाने नहीं आ सकता. Only and only because Paul was like, he must have had something. This Alexander must have done something, and he said, now may the Lord deal with you. और यहाँ पे सिकंदर ने कुछ तो किया होगा. यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा बदला ले. He did not pray, he did not fast, he did not say Jesus loves you. He just said, अब तू देख, मेरा पिता तेरे साथ डील करेगा. My father will deal with you. मेरा पिता तेरे साथ वहाँ पे देखेगा. People of God, this is how Jesus also did. और यहाँ पे यीशु मसीह ने यही किया. People of God, I want to tell you, when Jesus was doing ministry, और जब मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, he had lot of enemies. Do you think that Jesus didn't have enemies? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे यीशु के कोई शत्रु नहीं होंगे? If Jesus being Jesus so perfect, और यहाँ पे यीशु खुद वहाँ पे यीशु होने के नाते इतना सिद्ध था, अगर उसके दुश्मन हो सकते हैं, तो हम क्या है? फिर आप आपके दुश्मन को देख के क्यों रोते हो? क्योंकि यीशु होने के बावजूद, इतना परफेक्ट होने के बावजूद, अगर यीशु के दुश्मन थे, यीशु के सेवकाई के दुश्मन थे, यीशु कौन है उसके दुश्मन थे, तो आप और मैं अगर दुश्मनों को देखते हैं तो आप निराश मत हो जाओ प्रियो. Are you understanding, people क्या of समझ God? रहे हैं? He had different response to the different people. और अलग अलग लोगों के लिए उसके अलग अलग प्रत्युत्तर थे. Sometimes what we do, और कभी कभी हम ये करते हैं, you try to be friends with everyone. आप जो है सभी के साथ जो है मित्र बनाने की If कोशिश you are करते हैं. trying to be friends with everyone, और आप सभी के साथ अगर मित्र बनाने let की me कोशिश tell करते you, हैं, you are trying to become better than Jesus then. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप यीशु से भी बढ़कर बनने की कोशिश करते हैं. It's not the case. ये ऐसे नहीं होता. Because Jesus was also not friends with everyone. क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह भी सभी के साथ मित्र बन के नहीं रहा. Read your Bible. अपने वचनों को पढ़ो. Was Jesus friends with everyone? क्या यीशु मसीह सभी के साथ मित्र बन के रहा? Even his disciples, in the disciple, he had an inner circle, 3, close. और वहाँ पे 6 लोग के वहाँ पे झुंड में भी उसके सिर्फ खास वहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So when you say, oh, I am friend with everyone, मेरा सबके साथ है, मेरा इधर भी है, मेरा उधर भी है, सबके साथ है, you are trying to be better than Jesus. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप यीशु से भी बढ़कर बनने की कोशिश कर रहे हैं. That doesn't mean that you hate people. इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से घृणा You रखते have to हैं. maintain boundaries with certain people. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक वहाँ पे सीमा रखनी है कुछ लोगों की. If you don't have boundaries in your life, अगर आपके जीवन में कोई सीमा नहीं, कोई I'm वहाँ पे- telling you, enemy will enter because there is no boundary. तो फिर मैं आपसे कहता हूँ शत्रु वहाँ पे आपके जीवन में प्रवेश करे क्योंकि वहाँ पे कोई सीमा ही नहीं If है. there is a boundary, अगर वहाँ पे कोई सीमा if है, there is a border, अगर वहाँ पे कोई enemy बॉर्डर will है, think it before it cross. तो
तो वहां पे शत्रु वहां पे पार करने से पहले 10 बार सोचेगा। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? I don't know how many of you are able to understand this, मैं नहीं जानता कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं, people of God, but this will help you. पर मैं आपसे कहता हूँ ये आपके बहुत सहायता करेगा। You know, if Jesus was so perfect, but still he had enemies. यहाँ पे यीशु मसीह इतना सिद्ध था लेकिन फिर भी वहां पे शत्रु थे उसके। People of God, I want to tell you and I want to prophesy over your life. और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ और From आपको today बताना चाहता हूँ onwards, you will have this wisdom to dissect and discern the people in your life. आज के दिन से आपके पास ये नजर होगी कि आप लोगों को परखो और उसे जान सको। You have the discernment, the eyes of discernment that who is what exactly in your life. और आपके पास ये नजरें होंगी कि आप लोगों को जान सके, उनको परख सको। Hallelujah. I'm telling you, when you have this, और मैं आपसे कहता हूँ जब आपके पास ये होगा your life will be much different. तो मैं आपसे कहता हूँ आपका जीवन In पूरी your रीति से बदल business, who जाएगा। you will know whom to trust. तो आपको पता हो कि आपके बिजनेस में आपको किसके ऊपर In भरोसा your करना है। family, in your relatives, in your building, you will know whom to trust. तो आपकी बिल्डिंग में, आपके परिवार में आपको पता हो कि किसके ऊपर आपको भरोसा Are करना you है। understanding? क्या आप You समझ will रहे get हैं? to know who is your enemy and who is after what. और आपको पता हो कि क्या कौन वहां पे जो है शत्रु You है will और be कौन क्या able to है। take the right decisions in life. आपको सही निर्णय लेने के लिए You will be सहायता able to होगी। be in the right relationships. तो आपको वहां पे सही संबंध You में will not आएंगे, end up in the wrong marriages. तो आप वहां पे गलत शादियों में नहीं फंसेंगे। Hello? क्या समझ रहे हैं? You will say, what, Pastor, enemy and this and that. I'm teaching you something which will help you even in your career. आप सोचते होंगे कि शत्रु यह सब चीजें क्या है, मैं आपको यह पे सिखा रहा हूं ताकि आप आपके करियर में बदल सको। Can I tell you one more thing? क्या मैं आपको एक चीज सिखा Every सकता हूं। enemy has a value. हर एक शत्रु का एक वैल्यू होता है। I'll tell you why. मैं आपसे and कहता how. हूं क्यों। Because if there is an enemy in your life, अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है that brings velocity in your life. तो वह आपके जीवन में एक वेलोसिटी को लेके आता है। That brings a speed in your life. तो मैं आपसे कहता हूं कि वो आपके जीवन में गति को लेके आता How? है। ये कैसे? Some enemies in my life कुछ ऐसे शत्रु थे मेरे जीवन में, changed my prayer life. तो उन्होंने मेरे प्रार्थना जीवन बदल दिया। Are you understanding? Pastor, कैसे? और प्रार्थना करने लगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Some enemies in my life कुछ ऐसे शत्रु थे मेरे जीवन में, taught me next time you should not trust everyone. उन्होंने ऐसे सिखाया कि किसी के ऊपर जल्दी भरोसा मत करो। Hello? Every enemy comes with a lesson. हर एक शत्रु एक लेसन को लेके आता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक शत्रु एक पार्ट को लेकर आता है, बैठने वाला पार्ट नहीं, एक लेसन को लेकर आता है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Your enemy has a value. और आपके शत्रु का एक वैल्यू है। I'll tell you how. मैं आपसे कहता हूँ क्यों। That is why इसी don't enjoy when the enemy is fallen. तो आप जो है इसमें खुश मत होइए जब शत्रु वहां पे गिर जाता है। Don't, because some people have a habit. Oh, तो मेला माझ्यासोबत असं केलं, let's celebrate. Don't do that. ऐसे मत करो कि वो मर गया, उसने हाँ, सब मेरे गलत साथ किया ऐसा था। क्या, देख वो अंधा हो गया अभी, देख 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 कसं चालतो तो बघ. Don't do that. Proverbs chapter 24 verse 17. प्रोवर्ब्स की किताब इसका नीति वचन इसका 24वां अध्याय और 17 वचन. Are you learning something? Yes, it is called नीति वचन. 24:17. Yes. जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू क्या कर, एंजॉय कर. आनंदित न हो What is it written? जब Do not rejoice, or is it written do rejoice when your enemy falls? कैसे लिखा है कि तुम खुश हो जाओ जब तुम्हारा शत्रु गिर जाए। It is written don't rejoice when your enemy falls and do not let your heart be glad when he stumbles. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, Because yes, और जब तेरा ठोकर खाए तब तेरे मन में मग्न ना हो। people of God, I want to tell you, और परमेश्वर के लोगों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you have enemy, अगर आपकी कोई शत्रु है I'm telling you, then your success has a purpose. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपका सक्सेस का वहाँ पे एक पर्पस है। आप नहीं समझे मेरी बात को. अगर आपके पास दुश्मन है तो आपकी कामयाबी में एक उद्देश्य मिल जाता है. फिर आप जांच लो. मैं अगेन कहता हूं, जाके दुश्मन मत बनाओ इसके बाद. My God, the pastor's job is so difficult.
ये उनके लिए जिनको अभी दुश्मन से घिरे हुए लगता है कि कुछ दुश्मन आपकी जिंदगी में है। मैं सिर्फ लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ आदतें या कुछ ख्याल आपके जहन में आते हैं, वो भी आपके मंजिल के दुश्मन बन जाते हैं। इफ यू हैव दैट, अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं, आई एम टेलिंग यू, तो मैं आपसे कहता हूं, you have to thank the Lord, that say, Father, thank you for this enemy, because now my success has a purpose. तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि ये शत्रु मेरे I'm सामने telling you, haters can be your motivators. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके हेटर्स आपके लिए उत्तेजित बने। I repeat again, haters can be your biggest motivator. और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि आपसे घृणा रखने वाले Your आपसे- friend will encourage you, brother, don't worry, it will be fine. अरे भाई टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा। बट दुश्मन आपको अंदर से ऐसा बनाएगा और आप ये बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर दिस टाइम वॉच मी, अगले साल तू मुझे देख, मैं यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे Are हैं? you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Because you feel challenged inside you, क्योंकि आप खुद में इतना चैलेंज महसूस करेंगे that you will say, अरे इतना ये है, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे हुआ, 6-7 साल बार ऐसे हुआ है। आई विल एंश्योर दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ। Are you understanding? People of God, this is very important what I'm trying to tell you, because that will help you to say, Lord, I need your grace and I know I'm going to make it. और यहाँ पे बहुत जरूरी बात है क्योंकि आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है, और वहाँ पे If anyone insults you right now, अगर कोई आपकी वहाँ पे निंदा करता है because of your skill set or because of your finances or something like that, I'm telling you that should be the motivation for you. तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपके लिए एक मोटिवेशन बनेगा। अगर कोई आपको वहाँ पे निंदा करता है आपके पैसों को लेके या फिर आपके स्टेटस को लेके, Children, if anyone bullies you in the school, और बच्चों अगर आपको कोई वहाँ पे सताता है आपके स्कूल में, I'm telling you, take it as a motivation. तो मैं आपसे कहता हूँ एक मोटिवेशन के रूप में इसे लीजिए। And then you say, oh, now I'm going to be more perfect. I know I'm going to do something right now. तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप ये कहेंगे कि मुझे और सिद्ध बनना If you है। have failed in your career अगर आप आपके करियर में फेल and हो people गए, talk bad about you, क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, उनको करके दिखाओ फिर। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? In my life, people always thought that ये क्या करने वाला है। अभी वही लोग prayer request भेजते हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, this is very important. ये बहुत जरूरी बात है। Friends encourage, आपके दोस्त आपको वहाँ पे प्रोत्साहित but I'm करेंगे, telling you, there is a difference between encouragement and motivation. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे प्रोत्साहित करना और वहाँ पे आपको मोटिवेशन देना, इसमें बहुत फर्क है। Friends give you comfort, but enemy gives you movement. और यहाँ पे आपके दोस्त आपको वहाँ पे आराम में लेके जाएंगे, लेकिन आपके शत्रु आपको वहाँ पे एक हलचल में लेके जाएंगे। Because अगर दुश्मन है, थोड़ा इधर आ जा, don't be scared, it's okay. अगर दुश्मन है, दोस्त आके बोलेगा, डोंट वरी, आराम है, आराम है। दुश्मन अगर धक्का देगा तो आप आगे ही जाओगे। Are you understanding? So every time enemy tried to kick me, I went 2 steps ahead. तो जब कभी भी शत्रु ने मुझे लात मारी तो मैं आगे 2 कदम और चल गए। And that's why I say, Lord, thank you. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद Thank you देता for हूँ। everything. सभी चीजों के लिए That's धन्यवाद। why it is written in the word. इसलिए वचनों में ऐसे लिखा है, अगर तुम अपने आप को दीन महसूस करते हो तो प्रभु का धन्यवाद करो। Blessed are the meek in the spirit. और जितने लोग धन्य है कि वो जो दीन है। हृदय से दीन है। Are you understanding, people of God? क्या आप समझ रहे हैं I परमेश्वर को? told you about the David. और मैंने आपके दाऊद के बारे में बताया था। I say when you go to heaven, और जब आप स्वर्ग में जाते हो, or if you go to heaven, for some people when and some people if. How many of you understood this? कितनों को समझ में आई? When you go to heaven, और जब आप स्वर्ग में जाते हो, you meet the King David आप वहाँ पे राजा दाऊद से मिलते हो and you ask him, और आप उनसे पूछते हो, what is the biggest success secret? और आपके सक्सेस का, आपके वहाँ पे सफल होने का सबसे बड़ा रहस्य क्या King है? David will say, I had 6 enemies. उन्होंने वो ऐसे कहेंगे कि मेरे ऐसे 6 शत्रु थे, First was the family itself. और वो ऐसे कहेंगे कि सबसे पहला तो मेरा परिवार ही था। Why? I told you on Wednesday. और मैंने आपको बताया था बुधवार को, Because when the Jesse was asked, bring your sons, और जब जैसी को बोला गया था कि तुम्हारे अपने पुत्र को लेके आओ he सामने, made all the tall, dark and handsome sons in front of the prophet Samuel.
तो वहाँ पे उसने अपने सारे बड़े बच्चों को जो है वहाँ पे बुद्धिमान और सारे बलवान बच्चों को And वहाँ पे बिचारा खड़ा किया। David was left out. और दाऊद वहाँ पे छूट गया। And then prophet Samuel asked, where is, no, not this. These are rejected. और कोई है क्या? हाँ वो है, उधर है, वो हाँ ठीक है, बुला तो रुको. He was not even in गिनती. उसकी वहाँ पे गिनती में भी नहीं थी। अगर आपकी गिनती नहीं है तो एक बात जान लो, खुदा ने चुन लिया है आपको. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Family first. सबसे पहली बात परिवार। अगर वो फैमिली पे डिपेंड रहता तो शायद से वो राजा नहीं बनता, क्योंकि लेकिन प्रॉफिट सैमुएल ने उसको बोला, नहीं, ढूंढ के ला उसको, ब्रिंग हिम. His father was not ready to get him there. और उसका पिता वहाँ पे उसे लेके आने के लिए तैयार नहीं था। Number 2, दूसरी बात, when he was taking care of the sheep, जब वो वहाँ पे भेड़ बकरियों का वहाँ पे देखभाल कर one रहा day था, lion attacked him. वहाँ पे शेर वहाँ पे उसके ऊपर हमला किया। Are you understanding? That lion attacked him. He overcame the lion. और वहाँ पे उसने उस शेर को चाहे घायल कर दिया, वहाँ पे उसे फाड़ दिया। Hallelujah. Are you understanding what I'm trying to say? कितने लोग समझ पा रहे हैं? Then one day एक दिन the bigger enemy came. एक बड़ा शत्रु वहाँ पे आया, Goliath. गोलायत। David will say, I to thank Goliath. वो उसने कहा होगा कि मैं तो गोलायत का धन्यवाद करना क्योंकि चाहता मैं शेर को और भालू को मारता तब भी मैं शेपर्ड ही रहता, लेकिन जैसे ही मैंने गोलायत को मारा, लोग बोले इसको राजा बनाओ. Every level, new devil with a new sides. और हर एक आयाम में अलग अलग शत्रु होते हैं, एक अलग अलग सामर्थ्य के साथ। जब वो अलग अलग स्टेप पे गया, नए नए दुश्मन आते गए. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? पहले फैमिली, पहला परिवार था, then came lion. फिर शेर आया। अगर वो लायन को मारता तो हाँ, वो शेपर्ड के कम्युनिटी में, हाँ लाउड ले भारी शेपर्ड है, ले भारी एकदम बहुत अच्छा शेपर्ड है, वो लायन को मारा उसने, तो शेपर्ड लोग के कम्युनिटी में, समाज में उसका बहुत कॉलर टाइट होता. लेकिन जब उसका दुश्मन बड़ा हुआ और जब बड़े दुश्मन को मारा, तो पूरा इज़राइल बोला, शाउल किल्ड 1000, डेविड किल्ड 10,000. तो पूरे राज्य ने कहा कि शाऊल ने सिर्फ हजारों को उसको सीधा कंधे पे बिठा के लेके और शाऊल को एसिडिटी हो गया. How many of you know what I'm trying to say? कितने को समझ में आ रहा है मैं क्या Yes or बात no? कर रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ है. Shaul must have thought, यार, what is this? What is this? ये क्या हो रहा है? Because he killed a bigger enemy. क्योंकि उसने सबसे बड़े शत्रु को मारा। Now, and I also told you, और मैंने आपको ये भी कहा था, enemy brings movement. That's why I said enemy brings movement. और इसलिए मैंने कहा था कि आपका शत्रु आपको कार्य में लेके आता है। People of God, I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, then comes इसके बाद one more enemy. एक और शत्रु। What was it? वो कौन था? He was walking on the terrace. वो टेरेस पे चल रहा था। मैं और मेरी तन्हाई. He was walking there. वो वहाँ पे चल रहा था, And he saw something over there. उसने कुछ वहाँ पे देखा And he fell. और उसने महसूस किया, He fell. वो वहाँ पे गिर गया। Only one thing he should have done over there. और उसको सिर्फ वहाँ पे चीज एक करनी थी। He saw, he would have just do like this and went. जाता वो चुपचाप. चुपचाप वो जा सकता था. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बड़े जितने ऊंचे लेवल पे जाते हो, उस टाइम पे वो राजा था, उस टाइम पे और बड़ी दुश्मन वहां पे आए. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दैट लेडी इज एन एनिमी. आई एम सेइंग द टेम्पटेशन विच ही फेस्ड ओवर देयर was a bigger enemy than Goliath. और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्त्री वहाँ पे उसकी शत्रु नहीं, लेकिन वहाँ पे जो परीक्षा उसकी वहाँ पे हुई वो सबसे बड़ी शत्रु थी। Was a bigger enemy. वो सबसे बड़े शत्रु। When I say this from the experience. और मैं ये जब भी कह रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? The more you rise higher. जितने आप ऊंचे जाते हो, वो बेचारा दाऊद एक ही करता, देखा ना, चल ठीक है, चुपचाप मैं जाके बेडरूम में सोता हूँ. नहीं. He reacted to it. उसने उसके ऊपर प्रति उत्तर दिया। And because then तो बेचारे को टेंपल बांधना था और टेंपल बांधने का मौका नहीं मिला. फिर किसके हाथ में गया वो? शमूएल। क्षमा मिला उसको, क्षमा मिला, सब कुछ मिला. डेविड इज स्टिल क्लोज टू गॉड.
The grace is there. But I'm telling you, sometimes when you grow, your enemy size also grow. तो मैं आपसे कहता हूँ जब आप बढ़ते हो तो आपके शत्रु का वहाँ पे ऊंचाई भी बढ़ता है. I'm telling you, as you climb, your enemies changes. तो जैसे आप वहाँ पे चढ़ते हो तो आपका वहाँ पे शत्रु भी बदलता है. I want to tell you, people of God, this is very important. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बहुत जरूरी बात Closing है. in 3 minutes. 3 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ. Can I speak final things? आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ. हर बार आप जिस शत्रु का सामना करते हो ना, वो शत्रु एक्चुअली आपका एक रिफ्लेक्शन होता है. मैं आपको बताता हूं कैसे. If a lion is fighting you, अगर कोई शेर आपसे वहाँ पे because लड़ाई this कर रहा lion है was fighting David, और क्योंकि ये शेर जो है दाऊद के साथ लड़ रहा था, that means that lion saw that this David has something, a lion quality in it. तो उसने देखा होगा कि इस बच्चे के अंदर जो है कुछ तो शेर जैसी गुणवत्ता है. So when he went to the next level, और जब ये अलग आयाम में गया Saul was fighting him. और वहां पे शाऊल उससे लड़ रहा था. How many of you know Saul was fighting with him? कितनों को पता है कि शाऊल भी उससे लड़ रहा था? Because Saul knew, क्योंकि शाऊल को पता चल गया था one day when I'm gone, he's going to be the king. जब मैं नहीं रहूंगा तो ये राजा बनेगा. Are you understanding? कितनों को समझ में आ रहा है? So what is fighting you today? और आज आपसे क्या लड़ रहा है? What is fighting you today? आज आपसे कौन चीजें कैसी चीजें लड़ रही है? People of God, that is your reflection. अगर आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत है, इसका मतलब ये सोचो कि आपके अंदर कुछ तो बड़ा है. कितने लोग समझे मेरी बात? कितने लोग को समझ में आ रहा है? अगर आप माझं पोट दुखते, सर्दी खोकला झालाय, में ये अटके हो तो ठीक है. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, डोंट नो व्हाट टू डू, माय हैंड्स आर टाइड अप, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू मूव, और आपको ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद किया, मेरे हाथ जो है बंधे हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे आगे क्या करना है. समटाइम्स यू फील, मेनी पीपल फील लाइक सुसाइड, और बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि वो आत्महत्या कर मेनी लें. पीपल फील डिस्करेज्ड, और बहुत से लोग निराश हो because जाते they हैं are thinking that this enemy is too big for me, I cannot fight. क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ये शत्रु मुझसे भी बड़ा है, मैं नहीं लड़ सकता. I am here to remind you, तो मैं आपको याद दिलाना the चाहता हूँ enemy is not too big for you. यहाँ पे शत्रु आपसे बड़ा नहीं Enemy है. knows that you are too big for him, that is why he is fighting you. शत्रु को पता है कि आप उससे बढ़कर हो, इसलिए वो लड़ रहा है आपसे. शत्रु को पता है कि मेरे सामने वाला बड़ा है, ये मेरे लिए खतरा है, इसलिए पहले मैं खतरा बन जाता हूं. Can you see stray dogs sometimes when they see threat, they immediately start barking? क्या आपने कभी रास्ते के कुत्तों को देखा है कि मतलब जब वो खतरे को देखते हो तो भौंकना शुरू कर देते हैं? उनको लगता है कि ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है, तो उससे पहले ही वो एग्रेसिव हो जाते हैं. Same goes with the enemy, people of God, because that person, because अभी जॉय के साथ मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे पता है ये जॉय मेरे लेवल का है, इसके अंदर कुछ तो बड़ा है, इसलिए मैं इसके साथ लड़ रहा हूं. मैं एड्रिल के पास जाके नहीं लड़ सकता. क्या आप समझ रहे Are हैं? you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So if you are facing something big, अगर आप कुछ बड़ा वहां पे शत्रु के सामान जो I'm आप telling you देखते there हैं, is something big inside you. तो मैं आपसे कहता हूँ कुछ तो बड़ा आपके And अंदर you are empowered and equipped, because the Bible says you are more than a, कॉन्करर, क्योंकि आप परमेश्वर विजय से बढ़कर क्या हो? जयवंत हो. महाविजय हो. Hallelujah. Are you understanding, people of God? क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर? This is very important. ये बहुत जरूरी बात I है want to close this over here, और मैं आपको यहाँ पे समाप्त करना but चाहता I am here to remind you once again. हूँ. पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ There फिर are एक बार, some enemies whom you have to love. कुछ ऐसे शत्रु होंगे जिसको आपको प्रेम There करना are some जरूरी है. enemies you have to feed. कुछ शत्रु होंगे जिनको There आपको are some खिलाना है. enemies you have to pray. कुछ शत्रु होंगे जिनको But then आपको there are प्रार्थना some करनी है. enemies. पर वहां पे ऐसे कुछ लोग होंगे. Every evil eye over your family, it should go blind in the name of Jesus. हर एक बुरी नजर जो आपके परिवार के विरुद्ध होती है वो अंधी हो जाए यीशु मसीह के नाम Every से. evil tongue rising against you and your children should go mute in the name of Jesus. हर एक बुरी जुबान जो आपके विरुद्ध उठती है वो कट जाए यीशु मसीह के नाम से. Come on, people of God. I want you to use your authority right now. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों आप अपने अधिकार का इस्तेमाल Because the कीजिए. Lion of Judah is inside you. क्योंकि यहूदा का सिंह आपके अंदर है. It's not time to just be timid. It is time to use your authority. और यहाँ पे आप वहाँ पे पीड़ित ना बनो, लेकिन आप अपने अधिकार का इस्तेमाल Don't have करो. a victim mindset. Have a victor mindset. और यहाँ पे एक पीड़ित का नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जयवंत का विचारधारी बनो. People are being stuck in the victim mindset. और लोग यहाँ पे पीड़ित के एक विचारधारा को लेके चल रहे ओ हैं. मेरे साथ ऐसे हुआ, तुमको पता है क्या हुआ? अरे अब बताओ, तुमको पता है क्या मैंने क्या किया उसके साथ?
Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, use your authority. मैं आपसे कहता हूँ अपने अधिकार का I'm saying इस्तेमाल this कीजिए। again. This is our battle is not with the flesh and blood. Our battle is with the principalities of darkness. और यहाँ पे फिर से दोहराता हूँ कि हमारा युद्ध यहाँ पे हड्डी और मांस से नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। मैं आपको कहता हूं आप जो है जब उसका आज सामना करते हो तो अगली पीढ़ी को वो टच भी नहीं करेगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Many times people have not dealt with that enemy. Now that is why it has transferred to the next generation. But we are here to uproot that in the name of Jesus. हम यहाँ पे है कि हम उसे उखाड़ फेंके। Hallelujah. Let's close our eyes.